Hello students, the last session we have done first big sum in which we have prepared profit and loss appropriation account, partners capital account, right? Today we are going to understand the next sum in which we will be understanding a new method of preparing capital accounts, that is current account method. This is the method is also known as fixed capital account method. That means when capital account balance remain fixed for a longer period of time, that is known as fixed capital account method. Here in this method, various items like interest on capital, interest on drawings, distribution of profit, salary, bonus, commission, everything will be entered in a separate account which is known as current account, right? So capital account will not include anything except permanent change. मन अगर कैपिटल में परमानेंटली चेंज हो रहा है या तो परमानेंटली इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, तभी आप कैपिटल अकाउंट में कुछ एंट्री करेंगे. बाकी सारी चीजें जो हम कैपिटल में लिखा करते थे वो सारी चीजें यहाँ पे करंट अकाउंट में आ जाएगी. यू कैन सी इट. फाइन. नाउ लेट अस रीड द क्वेश्चन फर्स्ट. Sudhanshu and Sarvesh are the partners of a firm and their profit loss sharing ratio is 3:2. The capital of partners as on 1/4/16 was 90,000. This is fixed capital. Capital of partners is in the proportion of 5:4. मानिए दोनों पार्टनर का टोटल है 90. इसको 5:4 में हम डिवाइड कर देंगे. So that becomes their individual capital. The drawings of the partners during the year was as follows. Sudhanshu 6,000 on 1st July. Sarvesh 4,000 on 1st October. Now there is provision in partnership deed to pay interest on capital 8% per annum and to charge interest on drawings 12% per annum, and on 1/4/16 balances in current account of the partners 3,000 credit and 2,000 debit respectively for Sudhanshu and Sarvesh. तो यहाँ पे एक नया अकाउंट जो है करंट अकाउंट, उसकी ओपनिंग बैलेंस भी आ गई. बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमारे बैंक में दो अकाउंट हो सकते हैं ना. जैसे बैंक में हमारा एक फिक्स डिपॉजिट अकाउंट है, दूसरा करंट अकाउंट हो सकता है ना. तो बिल्कुल ऐसे ही है. और दोनों का इंटरेस्ट कैलकुलेशन सेपरेट होता है क्योंकि दो अकाउंट ही सेपरेट है. ठीक है. Now interest at 6% per annum on the opening balance of the current account is to be calculated. Sudhanshu is to be paid 5% commission on the profit after deduction of his commission from the profit. Now this is the point what we understood as a small sum, right? Now that's going to be applied here as a part of big sum. Before considering the above mentioned adjustments, profit of the firm for the year ending 31st March 17 is 37,770. From this information, prepare a profit and loss appropriation account, partners capital account and current accounts. Right? तो पहली बात हमें करंट अकाउंट प्रिपेयर करना है. दूसरी बात वो कमीशन वाला पॉइंट जो कि हमने एज अ स्मॉल सम कैलकुलेट किया, उसको हम यहाँ पे एज अ बिग सम कैलकुलेट करेंगे. राइट. तो अभी हम शुरू करते हैं इस सम को. Now you can see we have already drawn. ठीक है. सारे अकाउंट हमने ऑलरेडी ड्रॉ करके रखे ही हैं. P&L अप्रोप्रिएशन, पार्टनर्स कैपिटल एंड करंट. ये पार्टनर्स कैपिटल जो है वो छोटा सा रहेगा क्योंकि इसमें परमानेंट चेंज ही होते हैं. ज्यादातर तो ऐसा ही होता है कि ओपनिंग बैलेंस एंड द सेम बिकम्स अ क्लोज. बाकी सारी चीजें इस करंट अकाउंट में आ जाएगी. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट एंटरिंग एवरी आइटम. सो फर्स्ट वी आर टोल्ड that total capital is 90, which is fixed and which is divided among the partners in the ratio of 5:4. माने अगर 90,000 हम दोनों पार्टनर के बीच में डिवाइड करें 5:4 के रेशियो में, तो वो कितने होंगे? राइट.
तो उसका कैलकुलेशन से दिखाना कंपलसरी है, ऐसा नहीं होता इन द एग्जाम, बिकॉज़ इट्स वेरी सिंपल. Like in the last sum we have seen every calculation. Now I think every calculation may not be needed, but ऐसे कुछ important जो calculation है वो हम देखेंगे. जिसको हम दिखा देते हैं कि भाई 90,000 है, अगर दोनों पार्टनर के बीच में डिवाइड होते हैं in the ratio of 5:4. सुधांशु and सर्वेश 5:4 अगर ऐसे डिवाइड हुआ तो सुधांशु की कैपिटल होगी 50 और सर्वेश की होगी 40. मैंने आपको क्लियरली नहीं बोला है किसका कितना, तो इसे हमें इसको डिवाइड करना है और फिर यहां पे लिखना है एज एन ओपनिंग बैलेंस. बाय बैलेंस wrote down 50 and 40 respectively. फाइन. अभी इसमें आपको ड्राइंग्स दिया है, लेकिन बिफोर गोइंग फॉर ड्राइंग यू टू गो फॉर द ओपनिंग बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट्स. So on 1/4/16 the balance in the current account of the partners 3,000 credit and 2,000 debit. सुधांशु and सर्वेश respectively. तो सुधांशु की ओपनिंग बैलेंस जो है वो क्रेडिट है here. By balance wrote down. और सर्वेश जो है उसकी ओपनिंग बैलेंस जो है वो डेबिट है, दैट्स हियर. इट्स टू बैलेंस डाउन. ठीक है. तो इसमें डेबिट बैलेंस हो सकती है, जैसे बैंक में करंट अकाउंट होता है तो उसमें भी हमारी डेबिट बैलेंस हो सकती है ना. ओवरड्राफ्ट, हम बैंक का पैसा यूज करते हैं तो उसे हम ओवरड्राफ्ट बोलते हैं. वैसे ही पार्टनर जो है फर्म का पैसा यूज कर रहा है, सो हिज बैलेंस हैज बिकम नेगेटिव, दैट इज डेबिट. तो ये हो सकता है. तो इस पर इंटरेस्ट उसको पे करना है, इस पर इंटरेस्ट उसको मिलेगा. ठीक है. नाउ वी कैन गो फॉर द एंट्री ऑफ ड्राइंग्स. इसमें बोला गया है कि सुधांशु का ड्राइंग 6,000 है, सर्वेश का 4,000 है. सो इट्स टाइम टू क्लोज द ड्राइंग्स अकाउंट. So we'll write it, close it over here. See, हम करंट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे. अगले सम में हमने सारी चीजें कैपिटल में लिखी थी, अब इस सम में हम सारी चीजें करंट अकाउंट में लिखेंगे. ड्राइंग्स अकाउंट. सुधांशु का 6,000, सर्वेश का 4,000. ये हो गया. अभी हम पार्टनरशिप प्रोविजन की ओर आगे बढ़ते हैं. राइट. दूसरा इसमें प्रॉफिट भी इन्होंने दिया है, नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म 37,770. तो इसे भी लिख देते हैं यहाँ पे. राइट. बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दैट इज नेट प्रॉफिट, इट्स 37,770. ये हो गया प्रॉफिट. P&L से सीधा ट्रांसफर. अब चलते हैं प्रोविजंस की ओर. Now there is a provision in partnership deed to pay interest on capital at the rate of 8% per annum. तो ये जो कैपिटल है इसका 8% हमें कैलकुलेट करना है स्ट्रेट अवे. तो इसका 8% तो आसान है, सीधा कर लेंगे. राइट. तो अब इसका कैलकुलेशन हम शो नहीं कर दें क्योंकि ये भी आसान सी चीज है. राइट. तो इसका 8% अगर हम करें सो दैट कम्स टू 4,000 और इसका जाएगा 8 4 32, सो दैट कम्स टू 3,200. राइट. पर देखने वाली बात ये है कि इसको आपको कैपिटल अकाउंट में नहीं लिखना है. व्हाई? बिकॉज यू हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड करंट अकाउंट. तो पार्टनर्स की जितनी डे टू डे आइटम्स है जो हर साल होती है, उन सारी चीजों के लिए ये स्पेशल अकाउंट बन गया करंट अकाउंट. तो कैपिटल बन जाएगी फिक्स, और फिक्स ही रहेगी सालों साल जब तक आप उसको चेंज ना करें. मैंने कोई पार्टनर बोल दे परमानेंटली कि चलो अभी मेरे 50,000 हो, तो यहाँ पे 50,000 का लाख हो जाएगा, या परमानेंटली 30,000 ऐसा कुछ विड्रॉ कर दे, तभी यहाँ पे एंट्री होगी. बाकी कैपिटल अकाउंट में कोई एंट्री नहीं हुई. ये सारी चीजें जो कैपिटल को चेंज किया करती थी अब चेंज नहीं करेगी,
वो सारी चीजें करंट में ट्रांसफर हो जाएगी। तो कैलकुलेट इस पर होगा बट एंट्री करंट में होगी। बी केयरफुल, even though it's interest on capital, you will calculate on capital, but you will not write in capital account, but you will write them in current account. ठीक है, तो इसका हम 8% करें, that is interest on capital. As we know that it's income of the partner, right, an expense of the firm. इसका 8% करेंगे comes to 4,000 और इसका 8% करें comes to 3,200. This is interest on capital. And as we know it's an expense, तो expense account close होता है. P&L appropriation to interest on capital. तो यहाँ पर हम लिखेंगे to interest on capital account. ठीक है, इसका कितना? सुधांशु है उसका है 4,000 और सर्वेश है उसका है 3,200. दोनों का टोटल करेंगे तो हो जाएगा 7,200. तो यहां पे तो जैसे था वैसा ही रहेगा, यहां पे जगह बदल गई, कैपिटल के बजाय आ गया करंट, राइट? तो अभी आगे चलते हैं. ड्राइंग्स. We are told that 8% per annum interest on capital and to charge interest on drawings at the rate of 12% per annum. अभी ड्राइंग्स के ऊपर 12% चार्ज करना है ऐसा बोला गया एज पर पार्टनरशिप डीड, राइट? तो अभी 6,000 जो है पहला ड्राइंग को कौन सी डेट को हुआ है? 1/7 को. दूसरा वाला जो है वो 1/10 को. ठीक है, तो इसका कैलकुलेशन हमें करना चाहिए कि भाई कितने मंथ्स का हुआ, राइट? तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, आई एम जस्ट showing it over here for your better understanding, right? तो सुधांशु जो है उसका कैसे रहेगा? उसने जिस डेट को विड्रॉल किया वो है 1/7. So 1/7/16 that's the date. वहां से लेकर के अपन 31 मार्च तक चले, that comes to total 9 months. 9 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट हो. ठीक है, तो 6,000 के ऊपर 12% and that's for 9 months, right? तो वो कितना होगा? That comes to 540, right? वैसे ही सर्वेश जो है उसने विड्रॉल कौन सी डेट पे किया था? 1/10/16 को. अब 1/10 से लेकर के 31 मार्च तक हम चले, so that comes to 6 months, right? It's 10, 11, 12, 1, 2, 3, fine. तो उसका जो विड्रॉल है 4,000, उसके ऊपर 12% तो लगेगा, but that's going to be for 6 months. 6 months का इंटरेस्ट जाएगा 240. So I hope you all are getting this. Fine. तो जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमने पिछले समय कैलकुलेट किया, हर एक समय ऐसा ही कुछ जाएगा, राइट? जिस डेट को आप करते हैं विड्रॉल, उस डेट से लेकर के लास्ट डे ऑफ द ईयर वहां तक हमें चलना है. ठीक है, तो वो 9 मंथ्स का है पहले का, दूसरे का 6 मंथ का है, दोनों इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट कर लिया, राइट? अब दोनों चीजों की एंट्री कहां पे? So interest on drawings, that's an expense of the part of income of the firm. तो यहाँ पे करंट अकाउंट में हम डेबिट करेंगे. अगले समय में हमने देखा था वो कैपिटल में था, अब यहाँ पे किस में आएगा? करंट. यहाँ पे लिखेंगे इट्स इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट 540 and 240 respectively, right? And this is an income.
right? It's income of the firm. So being an income, it's closed and transferred on the credit side, right? So interest on drawings to P&L appropriation. यहाँ पे हम लिखेंगे by interest on drawings account. सुधांशु का कितना रहेगा 540 और सर्वेश का कितना रहेगा 240, टोटल जाएगा 780. ठीक है, तो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज हमने खत्म कर दी. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल खत्म हुआ, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी हो गया. अब आगे चलते हैं. पार्टनरशिप डीड का प्रोविजन. अब उसकी ओपनिंग बैलेंसेस दी गई है, देखिए करंट अकाउंट. अब उसका क्या है, interest at 6% per annum on the opening balance of current account is to be calculated. माने ये जो ओपनिंग बैलेंस है इसका 6% लगेगा. अब देखिए दो टाइप की ओपनिंग बैलेंस है, एक है क्रेडिट वाला, दूसरा डेबिट वाला है ना, बहुत द टैक्स. ठीक है, तो दोनों का एक साथ मिला करके हम नहीं कर पाएंगे. फॉर एग्जांपल हमने जो यहाँ पे देखा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स दोनों का साथ में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों साथ में, बट यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट अब साथ में नहीं लिख पाएंगे. क्यों? क्योंकि दोनों की बैलेंसेस जो है वो ऑपोजिट है. सुधांशु की बैलेंस है क्रेडिट और सर्वेश की है डेबिट. तो क्रेडिट बैलेंस जो है कैपिटल जैसा कुछ बनेगा और डेबिट बैलेंस जो ड्रॉइंग्स जैसा कुछ बनेगा, राइट? तो इसका इफेक्ट जैसा आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किया करते थे बिल्कुल वैसे ही करेंगे, और इसका इफेक्ट जैसे हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स में किया करते थे बिल्कुल वैसा करेंगे. ठीक है, तो दोनों को सेपरेट कर देते, माने एक पार्टनर की का अब आप हम कुछ करो उसका तो उसको खत्म करो, है ना. इधर आप एक इफेक्ट उसकी दो तो इमीडिएटली उसका दूसरा इफेक्ट दे दो टू अवॉइड एवरी कंफ्यूजन. ठीक है, तो अभी परसेंटेज कितना है, इंटरेस्ट इज 6% पर annum on the opening balance, right? तो अब ये 3000 है, उसका 6% हमें करना है. ठीक है, 6 3 is 18, that comes to 180. Fine. So here we will write interest on current account 180. Now the partner will be given this. वो इनकम है पार्टनर की और फर्म का एक्सपेंस होगा. सो बिल्कुल उसी तरीके के उसे ट्रीट करेंगे जैसे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में किया करते थे. दैट्स एन एक्सपेंस ऑफ द फर्म. Firm is paying to the partner, so it will be closed and transferred over here. ठीक है, so it's interest on current account, that is सुधांशु. उसका जो है वो 180 रहेगा, फर्म उसको पे करेगी. तो एक पार्टनर का हमने अकाउंट जो है इंटरेस्ट का ओपन किया, इमीडिएटली क्लोज किया. वी डिडंट थिंक अबाउट द अदर पार्टनरशिप. क्यों? क्योंकि दोनों ऑपोजिट है. ठीक है, तो पहले इफेक्ट दूसरी इफेक्ट साथ साथ दे दे तो समझ में आ जाएगा कि भाई ये क्रेडिट है दूसरा डेबिट, समझ आ जाएगा ना. अब दूसरे पार्टनर की बात शुरू करें तो उसकी डेबिट बैलेंस है, तो वी एंटर ऑन द डेबिट साइड. तो अभी इसका अपन 6% करें, 6% of 2000 comes to 120. So firm इससे चार्ज करेगी, means it's an income of the firm and expense for service. So interest on current account comes to 120. Now as it's an income, it's going to be closed and transferred over here. It's interest on current account for Sarvesh. That's 120. तो अगेन हमने दोनों इफेक्ट साथ में दी, ओपन किया, क्लोज किया. To avoid every confusion, one is debit, other is naturally credit. So this
द न्यू पॉइंट ऑफ दिस, करंट अकाउंट हम पहली बार बना रहे हैं तो उसका इंटरेस्ट भी पहली बार एंटर कर रहा है. सो द रीजन व्हाई द सम इज चूजन इज टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट. ठीक है, तो अभी थोड़ा आगे चलते हैं. नाउ द लास्ट कंडीशन इज Sudhanshu is to be paid 5% commission on profit after deduction of his commission from the profit. माने उसको कमीशन उस प्रॉफिट पे देना है जिस प्रॉफिट में से उसका कमीशन निकल चुका है. राइट? So we know that it's that condition of calculating commission on profit after charging his commission. राइट? तो इस कंडीशन को अप्लाई करने से पहले हमें प्रॉफिट फाइंड करना है कि इस वक्त प्रॉफिट कितना आता है. एंड नेचुरली दैट इज प्रॉफिट बिफोर कमीशन, क्योंकि कमीशन तो अभी कैलकुलेट हुआ ही नहीं. तो इस वक्त इस पीएनएल अप्रोप्रिएशन में से आपको जो प्रॉफिट मिल रहा है दैट इज प्रॉफिट बिफोर कमीशन. ठीक है, क्योंकि कमीशन आपने कैलकुलेट किया ही नहीं, यू विल कैलकुलेट इट. तो इस वक्त देखते हैं कि प्रॉफिट कितना आएगा. राइट? हमें प्रॉफिट यहां पे लिखना नहीं है, सी वी हैव टू फाइंड ओनली. राइट? तो अभी क्रेडिट साइड का टोटल दिखता ही है बड़ा है, तो डेबिट जो छोटा है. दिस 38,670. उसमें से ये दो आइटम हम निकाल दें. राइट? तो वो जो आएगा दैट कम्स टू 31,290. राइट? ये जो क्रेडिट का टोटल है उसमें से आपने डेबिट किए दो आइटम निकाल दी. सो दैट कम्स टू 31,000. दैट इज नोन एज प्रॉफिट बिफोर कमीशन. क्या बोलेंगे उसको हम? प्रॉफिट बिफोर कमीशन. ठीक है, कैलकुलेशन देखा ना, लिख देते हैं यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर कमीशन. फिर उसमें से हम कमीशन निकालेंगे. ठीक है, एंड वॉट एवर कम्स दैट इज नोन एज प्रॉफिट आफ्टर कमीशन. अब आफ्टर चार्जिंग कमीशन का जो प्रॉफिट है उसका 5% होना चाहिए, तो जिसका परसेंटेज दिया उसको आपको 100 एज्यूम करना है. ठीक है, दिस इज प्रॉफिट आफ्टर कमीशन. इसका 5%, तो इस वक्त जो है वो प्रॉफिट कमीशन को अपने में समाये हुए है. इसके अंदर कमीशन भी है, इसके अंदर कमीशन के बाद का प्रॉफिट भी है, दोनों साथ है. ठीक है, और ये कितना है? तो हमने देखा कि क्रेडिट टोटल में से डेबिट को निकालते हैं, दैट कम्स टू 31,290. ये है वो अमाउंट. ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे लिखेंगे नहीं क्योंकि उसके ऊपर कमीशन अभी हमें कैलकुलेट करना है. तो इसके अंदर जो कमीशन है उसको सेपरेट करेंगे तो सिंपल सा इक्वेशन ऐसे ही जाएगा. इट्स 10525, क्योंकि इसमें से इसको अलग करना है, सेपरेट करना है. एंड 31,290 to what? So if you go for a cross multiplication, comes to 31,290 into 5. दोनों को मल्टीप्लाई किया और उसके डिवीजन में जाएगा 105. वो आंसर आएगा 1490. This is going to be the amount of commission. 1490. ठीक है, this is going to be commission given to whom? Will be given to सुधांशु. तो सुधांशु के लिए इनकम बनेगा और इसको अगर हम निकाल दें इसमें से तो क्या बचेगा? comes to 29,800. This will be profit after commission. अब आपको वेरिफिकेशन करना हो तो कर सकते हैं कि भाई इसका अपन 5% करें तो क्या इतना आता है? You can check it. 29,800 into 5
5% करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो एज एन इनकम इट शुड बी गिवन टू सुधांशु, तो उसके करंट अकाउंट में अमाउंट क्रेडिट जाएगी, जैसे किसी को सैलरी मिलती है वैसे इसको कमीशन मिल रहा है। सो दिस इज नोन एज कमीशन, दैट इज 1490, and this is paid by the firm. That means it's an expense of the firm. Being an expense is going to be debited here. That's commission. To whom? Sudhanshu. ठीक है, 1490। तो सुधांशु को जो कमीशन मिलना था मिल गया। अभी जो आया है दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट आफ्टर कमीशन, विच इज ऑल्सो नोन एज डिविजिबल प्रॉफिट। तो अभी जो प्रॉफिट बचा है 29,800 इट्स गोना बी डिवाइडेड अमंग द पार्टनर्स, राइट। तो ये हो गया डिविजिबल प्रॉफिट जो कि पार्टनर्स में डिवाइड हो जाएगा, राइट। अभी उसका जो रेशियो है, राइट, दैट इज 3:2। इसको 3:2 में हम दोनों पार्टनर में डिवाइड करेंगे तो किसको कितना मिलेगा। सो सुधांशु विल गेट 17,880 and Sarvesh will get 11,920। तो कौन सा रेशियो में डिवाइड किया हमने? 3:2, which is given as the first condition। सबसे पहले लाइन में दिया गया है कि भाई their profit and loss ratio is this, right? तो ये सीधा पार्टनर्स के करंट अकाउंट में जाएगा। बी केयरफुल, सारी चीजें करंट में आ रही है, कैपिटल में कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहीं पे अपन लिखेंगे डिविजिबल प्रॉफिट 17,880, 11,920। तो ये प्रॉफिट पार्टनर्स में हमने डिवाइड कर लिया। तो अब ये सम जो है उसमें सारी चीजें हमने एंटर कर दी। Now it's time to find out their closing balances। अब देखिए कैपिटल में तो कुछ बैलेंस में डिफरेंस तो आया नहीं, जितनी कैपिटल थी उतनी ही मेंटेन हो गई एट द एंड। तो वही की वही अमाउंट हम लिख देंगे एज अ कैपिटल कैरीड फॉरवर्ड, राइट। सो इट्स गोना बी बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड। ये सीधा बैलेंस शीट में चला जाएगा। ऑन विच साइड? It will be entered on the liabilities side। ठीक है, तो एक कैपिटल का बैलेंस हमने फाइंड कर लिया। बिल्कुल उसी तरीके से अभी हमें करंट अकाउंट का बैलेंस भी फाइंड करना है। Now see that can be bigger on any side ना, जैसे ये ओपनिंग डेबिट था तो ऐसे क्लोजिंग भी डेबिट हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि डेबिट वाला क्रेडिट में कन्वर्ट हो जाए या क्रेडिट वाला डेबिट में, कुछ भी हो सकता है। इन करंट अकाउंट नथिंग इज फिक्स्ड। और यहाँ पे अपन देखें तो सुधांशु का ये जो टोटल है दैट इज 26,550, सो 26 प्लस है और ये बहुत ही छोटा है। सो हियर इट क्लियरली सीम्स कि सुधांशु का तो क्रेडिट बैलेंस आएगा ही। सो इट्स 26,550 minus 6,540, so that comes to 20,010। तो ये जो बैलेंस बना, दिस इज बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड। ये सुधांशु का एक क्रेडिट बैलेंस, माइंड द डेबिट इज स्मॉलर, क्रेडिट इज बिगर, इट्स एक्सेस ऑफ क्रेडिट ओवर डेबिट। तो क्रेडिट बैलेंस का है। अब सर्वेश का देखिए तो तकरीबन 12,000 और ये 3,000, सो 15,000 के आसपास का कुछ है। और यहाँ पे हम देखें 2 + 4 6 और ये छोटा, इट्स नॉट इवन 7,000। तो यहाँ पे भी क्लियरली सर्वेश का भी क्रेडिट बैलेंस ही बड़ा है। सो इट इज 15,120, उसमें से
ये सारी डेबिट आइटम्स हम निकाल दें, comes to 8760। तो ये आ गई क्रेडिट बैलेंस। माने ओपनिंग डेबिट था, क्लोजिंग क्रेडिट हो गया। ये हो सकता है, या वाइस वर्सा भी पॉसिबल है कि ओपनिंग क्रेडिट और क्लोजिंग डेबिट हो जाए। इट कैन बी एनीथिंग। फाइन। सो हुआ यूं कि इतनी सारी इफेक्ट हमने दी, लेकिन कैपिटल की जितनी ओपनिंग बैलेंस थी उतनी ही क्लोजिंग है। देयर इज नो चेंज। जितने भी सारी चीजें चेंज ला सकती थी, व्हिच कैन चेंज द कैपिटल ऑफ any opening balance of capital, they are separately entered in some other account। तो कैपिटल का बैलेंस फिक्स हो गया, एंड दैट्स द रीजन व्हाई दिस मेथड इज नोन एज फिक्स्ड कैपिटल मेथड। और इसकी पहले वाली जो मेथड देखी थी हमने, जिसमें सारी चीजें कैपिटल में आती, दैट इज नोन एज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। ठीक है। तो जब फिक्स कैपिटल मेथड होती है तो स्पेशली कौन सा अकाउंट हम बनाते हैं, दैट इज नोन एज करंट अकाउंट। बी केयरफुल, ये सारी चीजें जो मैं बता रहा हूं, दिस थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एमसीक्यूज, राइट, कि कौन से अकाउंट में बैलेंस फिक्स होता है। मींस व्हेन देयर इज अ फिक्स्ड कैपिटल मेथड, व्हिच अकाउंट यू प्रिपेयर, सो दैट इज करंट अकाउंट। ठीक है। सो today we keep it up to here. Thank you.